नमस्कार। दोपहर के 12 बज गए और इस सायरन का मतलब है कि वक्त हो गया है ब्रेकिंग न्यूज का, वो कार्यक्रम जहां पर देश दुनिया की तमाम ब्रेकिंग न्यूज से हम आपको बाखबर करते हैं। और शुरुआत करते हैं आज एक बड़ी खबर से। राजपथ का नाम जो है वो बदलकर अब बदल दिया गया है और राजपथ का नाम अब राजपथ नहीं है, उसका नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। तो ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली के राजपथ का नाम जो है उसे बदल दिया गया है, कर्तव्य पथ नाम हो गया है। एनडीएमसी की बैठक थी और इसमें नाम बदलने का जो प्रस्ताव है उसे पास कर दिया गया है। तो दिल्ली के राजपथ का नाम बदल दिया गया है और कर्तव्य पथ इसका नाम है। किसी भी पद पर हो, कहीं पर भी हो, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से लेकर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनको दोबारा से पढ़ा जाए और देखा जाए। तो मेरे को तो पढ़कर वापस प्रधानमंत्री जी का जीवन सामने आया और मुझे लगा कि उनका जीवन ही कर्तव्य को समर्पित है। और वो कर्तव्य के भाव से, चाहे वो पोषण अभियान है, चाहे वो स्वच्छता अभियान है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से हमारे मॉन्यूमेंट्स का रख रखाव है, और चाहे वो आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की जो श्रद्धा है, फ्रीडम स्ट्रगल और तिरंगा यात्रा और तिरंगे हर घर तिरंगा, ये सब उसी से प्रेरित है। आज के दिन में हम सब शामिल हुए। हम अब सब का एक ही बात थी कि हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये भी हमारे कर्म में, हमारे नसीब में आना था कि ये काम हमारे हाथों से हुआ और आज हम काउंसिल की मीटिंग में इतना बड़ा निर्णय ले सके, जो कि आने वाले भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। I will say the same thing for the English media in English, that today's meeting was a special meeting of NDMC, and the idea was, the resolution was passed to change the name of Rajpath to Kartavya Path. The history of this region is that this entire region was constructed by the imperialist powers, and post-independence, Janpath, which is called Janpath today, was called Queensway in earlier times, and it got changed to Janpath. But the Rajpath was called Kingsway and continued to remain as Rajpath. Now, post-independence, we chose the system of democracy. In democracy, whoever gets elected and whoever gets to be in the position of executive officers, like we have Bhupender ji sitting as an IAS officer with us, everybody's inspiration has to be duty towards nation, our duty towards public, our duty towards people. And that inspiration was somewhere missing because people were taking these positions with the idea of doing Raj, with the idea of ruling over others. The idea of democracy is not to rule over others. The idea of democracy is participatory nature, and people need to be bound by the duties. And when we are bound by the duties, the fulfillment of duty on part of one person will automatically lead to completion of rights of the other people. A small example, while we were discussing this particular subject, we also discussed this. A small example was brought up, and the example is that if a father is complying with his duties towards his family, his children, automatically the rights of the children get to be fulfilled. And similarly, if the children are complying with their duty towards their father and parents or elderly people, automatically their rights get to be fulfilled. So the emphasis, instead of being adhikar based or the rights based society, the Indian society is duty based. We've had the history of Shravan Kumars in this country. We've had the example of Ram. We've had so many examples where people from the statecraft to personal lives have been duty bound, and thus inspiration needs to be brought forward which is bound by the duty. I'm sure many of these things were in the minds, and as Prime Minister of India, Narendra Modi ji, already has spoken about it, that this is the time when we are celebrating Amrit Mahotsav. And this Amrit Kal needs to inspire all of us to take forward our duties and do whatever is needed towards the country.
And if we go over the directive principles of state policies, and especially 51A is reread, we will understand that today's decision is in line with subsection B, subarticle B and J, where the inspiration has to be about freedom movement, respect for the constitution, respect for the national flag, and duty towards all. And that duty towards all for all times to come will inspire all Indians to be bound by the duties towards nation and society at large, and of course the family. And this is a big change in the thinking of governance, especially because in governance system, till now, post-independence, 75 years have gone past, and the inspiration came from ruling over our own people, ruling over the people of this country. From that mindset, the mindset needs to change, and it has to be duty towards our nation for all individuals. Taking care of government property, taking care of public life, taking care of everybody. I mean, if we go over that, and if every citizen of this country complies with the duties, I think half the problem in this country. तो 1911 में बनाई गई सड़क राजपथ अब कर्तव्य पथ बन चुकी है। यह बड़ी खबर है। तकरीबन 111 साल के बाद यह बदलाव हुआ है। इस पूरे विवाद को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से आज तक ने बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, हम आपको सुनवाते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में देर रात विवाद के बाद रणबीर कपूर आलिया भट्ट महाकाल दर्शन कर नहीं सके। इस पर काफी सियासत हो रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए। ये हंगामा हुआ सर, कल उन लोग आए थे, आयान मुखर्जी, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, लेकिन रणबीर और आलिया जो है बिना दर्शन किए वापस चले गए, प्रदर्शन की वजह से, हंगामे की वजह से। देखिए, प्रदर्शन अलग चीज है, अलग स्थान है, दर्शन का अलग स्थान है। कोई विषय ऐसा बोल देना जिससे भावना आहत हो, वो प्रदर्शन का विषय था। दर्शन के लिए तो उनको प्रशासन ने आग्रह किया, प्रशासन ने मुझे ऐसा बताया। उनके साथ वाले जो थे आयान मुखर्जी जी, निर्माता, निर्देशक और बाकी टीम ने दर्शन किए सबने। इन्होंने मना कर दिया दर्शन करने के लिए, लेकिन हमारी व्यवस्था पूरी थी। उनका ये डर था आलिया भट्ट का, वो गर्भवती हैं, वहां जाती हैं, अगर कुछ धक्का लगता, कुछ होता तो उनको नुकसान पहुंच सकता था, इसलिए उन्होंने। था नहीं, अलग अलग थे भाई। अब ये अलग बात है कि उनको क्या आशंका थी, लेकिन बिल्कुल आस्ते प्रशासन था, पूरी व्यवस्था थी। अब आप कुछ इस पर आलिया भट्ट या कोई दर्शन कर नहीं सके, वो बिना उसके चले गए। मैंने रिपोर्ट मंगाई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट प्रशासन से बोला है भेजने का। जी, जो प्रदर्शन करते उन पर कोई कार्रवाई? वो तो कल हो गई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर काफी चर्चाएं रही, लेकिन अब उसका पहला लुक जो है वो सामने आया है। हम आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर देखिए आप, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये पहला लुक जो है, खूबसूरत लुक, ये निकलकर सामने आया है। इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और अब इसका पहला लुक, पहला वीडियो जो है वो सामने आया है। तो ये वीडियो हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं, और जरा देखिए खूबसूरती जो है वो देखते ही बनती है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में। तो ये अपने आप में खूबसूरत वीडियो जिसे रिलीज किया गया है, सेंट्रल विस्टा का पहला लुक जारी किया गया है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये बनकर तैयार होगा पूरी तरह से, तो फिर खूबसूरती जो है वो कैसे नजर आएगी। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको लेकर काफी चर्चाएं रही। सत्ता पक्ष ने कहा कि ये वक्त की मांग है, विपक्ष ने कहा कि ये पैसों की बर्बादी है, लेकिन इन सब के बीच में जब पहली तस्वीरें आती हैं तो ये बेहद खूबसूरत नजर आती है। दिल्ली में कई सारे बदलाव हो रहे हैं, और इन एक बड़े बदलावों में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसकी ये पहली तस्वीर इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं। तो पहला लुक जो है वो सामने आ चुका है, और एक वीडियो के जरिए इसे जारी किया गया है, और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ राजपथ का नाम जो है वो बदल दिया गया है कर्तव्य पथ,
और दूसरी तरफ यह वीडियो जारी किया गया सेंट्रल विस्टा का पहला लुक, जिसको लेकर हमने कहा कई सारे बदलावों से गुजरती हुई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पहला लुक सामने आया और इसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर, और इसे आज जारी किया गया है। आपको बता दें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो कि 3.90 लाख वर्ग मीटर का एरिया है, 19 एकड़ में केवल नहर बनाई गई है, उसकी भव्यता को हम आपको दिखा रहे हैं। विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक का रास्ता बनकर तैयार हो गया है। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करने की तारीख रखी है और 9 सितंबर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यह कहा जा रहा है कि इस एवेन्यू में लोगों की जरूरतों का हर खास ध्यान रखा गया है। तो ये जानकारी जो निकल कर आ रही है नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर। इधर राजपथ हम आपको दिखा रहे हैं, 111 साल पुरानी सड़क जो है उसे बदल दिया गया है, उसका नाम बदल दिया गया। दरअसल राजपथ की जगह उसे अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो कई सारे बदलावों से गुजरती हुई और 111 साल बाद ये बड़ा बदलाव, और इधर सेंट्रल विस्टा का पहला लुक आपको दिखा रहे हैं। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर को लेकर। आप सांसद संजय सिंह ने लीगल नोटिस की कॉपी को फाड़ दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉपी फाड़ दी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस लीगल नोटिस की कॉपी को फाड़ दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों को ये नोटिस भेजा गया था, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, और इन तमाम लोगों को एलजी ने नोटिस भेजा था, लेकिन उस एलजी के नोटिस को उन्होंने सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया। ये देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह कर रहे थे आम आदमी पार्टी के दफ्तर से, और उसके बाद मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने इसे फाड़ा और यह कहा कि मैं नोटिस से डरने वाला नहीं हूं। आप सांसद संजय सिंह ने नोटिस की कॉपी को फाड़ दिया है और फाड़कर कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। दिल्ली के एलजी की तरफ से यह लीगल नोटिस भेजा गया था। ये नोटिस भेज रहा है। वीके सक्सेना को मैं कहना चाहता हूं, भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं, और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और तुम्हारे इन भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे, ये संभव नहीं है। तो दिल्ली में ये नोटिस फाड़ सियासत हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज जुड़ रहे हैं। पंकज, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के कैमरों के सामने उस लीगल नोटिस को फाड़ा गया, इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या मैसेज संजय सिंह इसके जरिए देना चाह रहे थे? क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में अहम हो जा रही हैं, इसको लेकर चर्चाएं हर तरफ है। बिल्कुल शुभांकर, आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार उपराज्यपाल पर हमला कर रही है, और आज जो संजय सिंह ने नोटिस फाड़ा है ये भी उसी का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उस आरोप के तहत अब जांच की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। तो सीधे तौर पर अब ये नजर आ रहा है कि एक क्लैश हो गया है एलजी और वर्सेस सीएम के बीच में, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो सीधे तौर पर उस भूमिका में नजर आ रही है जो डायरेक्ट अटैक कर रही है दिल्ली के उपराज्यपाल पर। पिछले दिनों खादी ग्राम उद्योग में ये आरोप लगाया था कि जो नए नोट है उनको बदला गया पुराने नोटों के साथ, और ऐसी स्थिति में अब एक नया आरोप आम आदमी पार्टी लेकर आई है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को लेकर भी एक घोटाला सामने आया है। तो आरोप की एक झड़ी यहां पर आम आदमी पार्टी ने लगा दी है, और जाहिर सी बात है जब से शराब नीति को लेकर
दिल्ली में हलचल शुरू हुई है उसके बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी किसी न किसी तरीके से एलजी को भी घेरने की कोशिश कर रही है। तो क्या पंकज ये माना जाए कि जो ये नोटिस कैमरों के सामने फाड़ा गया, इसके जरिए वो एलजी को या बीजेपी को या जो भी विरोध में उनके हैं उनको एक स्ट्रांग मैसेज देना चाह रहे हैं, इस वजह से कैमरे के सामने फाड़ा गया ताकि संदेश थोड़ा दूर तक जाए? बिल्कुल, यहां पर साफ है आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर यह दिखाना चाहती है कि वो दिल्ली में जो उपराज्यपाल हैं उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। यह आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है। आम आदमी पार्टी के नेता जब आरोप लगाते हैं तो वो सीधे तौर पर 3 तरह की मांग करते हैं कि सीबीआई, ईडी, एलजी की जांच करे। यहां पर ये भी कहती है आम आदमी पार्टी कि वो अपने इस्तीफा देने के बाद इस पद से हट जाएं। साथ ही साथ बीजेपी पर भी आम आदमी पार्टी हमला करती है और इस पर सीधे तौर पर जो निशाना होता है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी होता है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अब ये जो रणनीति तैयार की है, देखना होगा कि इसे लेकर आने वाले दिनों में उपराज्यपाल दफ्तर की तरफ से भी क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब पहले दिल्ली विधानसभा में भी इसे लेकर हलचल हुई थी, सबसे पहले उपराज्यपाल के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में यह मामला सामने आया था, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक ने यह आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल जो है वो किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त थे। हालांकि उपराज्यपाल दफ्तर ने बयान जारी कर इस तरह के आरोप से इंकार कर दिया था। अब यहां पर आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर निशाने पर ले रही है भारतीय जनता पार्टी को भी, और देखना होगा कि भाजपा की भी क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है। शुभंकर, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज शाम 5 बजे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। 5 महीने की ये पदयात्रा 12 राज्यों से गुजरते हुए 3570 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करेगी। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के 118 नेता पूरी यात्रा में साथ रहेंगे, लेकिन पूरे यात्रा मार्ग में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नेता जुड़ते रहेंगे। इस यात्रा के लिए 50,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी श्री पेरबंदूर गए, जहां पर अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उन्होंने नमन भी किया है। आज शाम 5 बजे राहुल गांधी की कांग्रेस की भारत यात्रा के आगाज होने वाला है। इससे पहले आज सुबह राहुल गांधी श्री पेरबंदूर पहुंचे और पिता राजीव गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कन्याकुमारी से कांग्रेस की यात्रा शुरू होने वाली है। पूरी यात्रा जो है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, 3570 किलोमीटर की होगी, जो 12 राज्यों से गुजरेगी। 5 महीने यात्रा चलेगी। 119 नेता राहुल गांधी समेत ऐसे हैं जो इस यात्रा मार्ग में होंगे, और बीच बीच में तमाम दूसरे लोग जो उस राज्य या उस जिले से होंगे वो इस यात्रा में जुड़ते जाएंगे। लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। कैसे, हम आपको सुनवाते हैं कुछ बयानों के जरिए। कांग्रेस का समय में तो भारत 2 टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। वही है, भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। हेमंता विश्व शर्मा आजकल जहर उगलने का काम करते हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं, तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। एक यात्रा अडवाणी जी की निकली थी जिसने समाज को बिखेर दिया, तोड़ दिया। ये पदयात्रा जो है वो रथ यात्रा थी, और जयराम जी ने सही कहा था, ये रथ यात्रा नहीं, रौथ यात्रा है। मतलब जहां गए वहां दंगा हुआ, फसाद हुआ, खून बहा। लेकिन ये सबको जोड़ने की यात्रा है, और यही मूल फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। कांग्रेस और राहुल गांधी की जो यात्रा है, इसकी शब्दावली पे मुझे इतराज है। भारत टूटा कहाँ है जो आप जोड़ने निकले हो? भारत तो टूटा नहीं है, उसको तो जोड़ दिया गया था। तो आप किस प्रकार से कह सकते हो भारत टूटा है और भारत तो जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं आप? मुद्दों के आधार पे तो आपने बांट रखा था भारत को। 370 ले लीजिए,
जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं बनने दे रहे थे, सामान्य नहीं होने दे रहे थे, वो हमने हटाया।